Good morning, students. Today we are going to learn about civics chapter number 2, role of the government in health. So what is the role of the government in health? There are so many roles played by the government, okay, and it could be through the provision of education also, health, employment, housing, or development of road, electricity, etc. Okay, but today we are going to learn about what is the role of the government in health facility, in public health facility. Okay. So in this chapter we are also covered about these points. What is health? Okay, in this chapter we will learn about what we are going to study in this chapter. So these are the points that we are going to study in this chapter. For what is health? Okay, then healthcare in India. The story of the Hakim Sheikh. There is a story, Hakim Sheikh story. Okay, we will learn it. Then public and private healthcare service. There are two types of public healthcare service. Okay, public and private health. What are the difference between public health service and private healthcare service? That we also learn in this chapter. Then healthcare and equality. If there are equality in healthcare, okay, so this also we will learn. Then the Kerala experience. What was the Kerala experience? And the Costa Rica approach. So what is the Costa Rica approach? So these also they are covered in this lesson. Okay. So this chapter is very important. Okay. And it is about the state government. What is the role of the state government in health facility? Okay. So here people they have expectation. Okay. People they always expect from the government. Okay. Because they choose their government. And so that they expect from the government. So their expectation, उनकी अपेक्षा, okay, their expectation have to fulfill by the government. तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उनकी अपेक्षा फुलफिल करे, क्योंकि उन्होंने वोट दिया, okay, they made their government, okay, and so that people have to expect from their government, and it is the state government approach, okay. तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के लिए क्या करने वाली है, ठीक है, वो कौन कौन सी फैसिलिटी देती है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, सो ये सब यहाँ पॉइंट्स है. व्हाट इज हेल्थ, देन हेल्थ केयर इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, देन हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, द केरला एक्सपीरियंस and the Costa Rica approach. So these are the points, okay, that we are going to study in this chapter. So first we have to learn about people and their expectation. Okay, so you know that government have to work for their welfare. Okay, because we elect our government, okay, and we expect our expectation the government, okay, because we have a right to expectation ना, okay, because we choose them. हमने गवर्नमेंट बनाया तो हम उनसे ही अपेक्षा करेंगे ना, या बाहर देशों से जाएंगे नहीं ना. हमने जिस गवर्नमेंट को चूज किया है, इलेक्ट किया, ओके, सो हम उसी से एक्सपेक्ट करेंगे. इसीलिए पब्लिक और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो गवर्नमेंट को पूरा करना है. Okay, and so that government run welfare activities. Welfare activity जो है वो government लाता है. Welfare activities. गवर्नमेंट को कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी पड़ती है. ओके, सो यू नो दैट वी गिव टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. We give taxes to the government, and government use that taxes, okay, for the welfare of the people. लोगों के कल्याण के लिए वो यूज किया जाता है. ओके, सो ये किस तरीके से होता है? ओके, how this
welfare done. This could be through the provision of education. तो ये एजुकेशन के थ्रू हो सकता है. ओके, गवर्नमेंट जो है लोगों के एजुकेशन के लिए खर्चा करेगा. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो ये सब जो है इनके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है. सो ऑल दीज आर वेलफेयर एक्टिविटीज. ओके, तो गवर्नमेंट जो है जो पैसा है एजुकेशन के लिए खर्चा करती है. ओके, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, लोगों को नौकरियां देना, रोजगार पैदा करना. ओके, देन हाउसिंग के लिए लोगों को घर बना के देना, रोड्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑल दीज आर इंक्लूड इन द वेलफेयर activities. Okay, so these are the main points that people they have to expect from the government, and government provide them welfare activities. Okay, so all this we learn in this chapter. It is the introduction of this chapter. Okay, so in this chapter we shall examine the meaning and problems related to health. Okay, so in this chapter we are going to learn about health. What is the meaning of the health and what are the problems that related to the health. ठीक है, इस चैप्टर में हम एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग इनके बारे में नहीं पढ़ने वाले. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ. ओके, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हेल्थ फैसिलिटीज क्या है उसके. ओके, so look at the subheading of this chapter. What is the subheading of this chapter? Role of the government in health. Okay, so here in what ways do you think this topic is related to the work of the government? And this is the chapter related to the state government work. Okay, health care and facility that is under state government. Okay, and so that this is under the state government. Okay, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में. ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स वी आल्सो कवर इन दिस चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज हेल्थ. ओके, हेल्थ क्या है. सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हेल्थ क्या है. ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. व्हाट इज हेल्थ. ओके, सो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. बहुत सारे वेज से हम we can think it. Okay, health means our ability to remain free of illness and injuries. Okay, free of illness and injuries. हमें कोई illness ना हो या कोई injury ना हो. Okay, so this is the common meaning of health. Okay, so our ability to remain free of illness and injury, that is health. Okay, but हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज. क्या हेल्थ जो है सिर्फ डिसीज के बारे में रिलेटेड है? नो, इट इज नॉट अबाउट ओनली डिसीज. ओके, यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव पॉइंट विद हेल्थ. ओके, तो ये जो है हेल्थ जो है ये डिसीज से नहीं. ओके, देयर मस्ट बी इंक्लूड अबाउट फूड आल्सो. ओके, so what we often ignore in the fact that each of the above situation is related to health. So now we will learn detail about it. Okay, so now you know about what is the health. Okay, so we can think of health in many ways. Okay, what is the meaning of health? Health means our ability to remain free of illness and injuries. Okay, आप और कुछ सोचिए कि और हेल्थ की क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है. आप क्या सोचते हो हेल्थ के बारे में, ये आप सोचिए. ओके, सो हैव यू थिंक अबाउट व्हाट इज हेल्थ. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम डिसीज, हम सिर्फ डिसीज के बारे में ही नहीं सोचना है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम डिसीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ. डिसीज जो है उससे भी अदर्स फैक्टर जो है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, that we have to think. Okay, so apart from disease we need to think of other factors that affect our health. For example,
if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. Okay, so if you want clean drinking water, okay, पीने का स्वच्छ पानी, clean drinking water और pollution free environment, प्रदूषण रहित एक ऐसा वातावरण, ठीक है, ये भी हेल्थ के कैटेगरीज में आता है। पानी का शुद्ध पानी, पीने का शुद्ध पानी और प्रदूषण रहित वातावरण, ओके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ओके, सो दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। इन अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। ठीक है, अगर लोगों को खाना नहीं मिला तो कुपोषण से वो मर जाएंगे, है ना। खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, खाना भी, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट, खाने के लिए अगर उनको सही ठीक से खाना नहीं मिला या वो भूखे रहते हो, ओके, तो क्या होगा, उनमें भी बीमारी आ जाएगी। If people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, अगर उसे ठीक से रहने के लिए जगह ना हो या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, तो क्या होगा, they will be prone to illness, वो कभी ना कभी बीमार पड़ने वाले, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, पेट भर खा नहीं पा रहे और वो ऐसे गंदी जगह पे रह रहे, तो हो सकता दे विल प्रोन टू इलनेस, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, वो बीमार पड़ने वाले हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, देन व्हाट, एडेक्वेट फूड फैसिलिटीज, उनको फूड भी चाहिए था, ओके, और उनको जो लिविंग कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ओके। सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव in a good spirits and whatever we may be doing, हम जहाँ भी जाएंगे हमें एक्टिव रहना चाहिए, ओके, हमें बहुत एक्टिव होना चाहिए और गुड स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, जो भी हम करेंगे, whatever we may be doing, okay, so it isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time। कुछ लोग बहुत डल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, ये भी एक प्रकार की क्या बीमारी है ना बेटा, ओके। सो इट इजंट हेल्दी टू बी डल, बहुत डल रहना, एकदम ऐसे, ओके, डल, इनएक्टिव, बहुत ही इनएक्टिव रहना, एकदम बहुत ही दुर्बल जैसे रहना, ओके, एंशियस, स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, ओके। सो वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, तो मेंटल स्ट्रेन जो है वो नहीं चाहिए, ये भी हेल्थ की कैटेगरीज में आता है, ओके। वी हैव टू बी फ्री विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन लेने का नहीं, ओके। सो दिस इज आल्सो विदाउट मेंटल स्ट्रेन। सो ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी चीजें, ये जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ। सो नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज हेल्थ, ओके। ये जो है पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, ओके, कि हेल्थ क्या है, ठीक है। ये सब बातें जो मैंने आपको भी बताई, ऑल दीज आर इंक्लूड इन द हेल्थ, ओके। सो ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ, ओके। सो इट इज फॉर टुडे। टुमारो वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है, ये नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।